Good morning, student. I welcome you all to the fourth lecture of Unit 5 of Power Plant in Engineering, that is Power Station Economics. Till now, we have gone through the different types of terms and definitions, and in the last session or in the last class, we were seeing the topic tariff. So today also I will start from the same, that is tariff, and we will discuss what is the general form of tariff, how the electricity bill what we are paying is being calculated, and what are the different types of tariff that has been implemented, and how the bill or the total charge is calculated on the basis of that tariff. So, first of all, I would like to tell again you about the tariff. The tariff is the rate of energy what we are consuming to fulfill our electricity demand, or I can also call the rate of electrical energy sold by a agency which is producing the electricity to the consumer, and that consumer can be a domestic, commercial or industrial purpose. है ना? There are basically 5 different types of tariff that was generally used and being improvised as the time passes. First one is flat demand rate, second one is the straight line meter rate, third one is the block meter rate, then the Hopkinson demand rate, and the last one is the Doherty type of tariff. First of all, before discussing the type of tariff, I will discuss the general form of tariff, or the general form, that is how the charge or a unit cost of electricity or the bill what we are paying is equals to our total maximum demand and the consumption. So this is the general type how we can represent the tariff. See here, Z is equals to AX plus BY plus C, where I have written Z is the total amount of bill for the period of for the considered period. This is the amount of bill what we are paying. For example, we are paying the monthly bill, so this Z will be the total amount of a month. For a period considered, here I am considering the period for a month, for a 30 days. So this is Z represent the amount, total amount of a bill what we are paying it for the 30 days. X is a maximum demand in kilowatt. This X is demand in kilowatt. What was my demand in kilowatt? Y is energy consumed in kilowatt hour during that 30 days. X is my maximum demand and Y is my consumption in unit for that 30 days. A is rate per kilowatt of maximum demand, and B is energy rate of kilowatt hour, and C is amount that is charged to the consumer during each bill. Whenever you will see your electric bill, you will find various type of another charges also, except your consumption and maximum demand charges. There will be a meter or rental charges, and there will be some miscellaneous other charges which are being calculated or added in your bill for that particular period. So it is very important to know that the general how we are representing our tariff is Z equals to AX plus BY plus C, where Z is the total amount, A is a rate per kilowatt of my demand, and B is the energy rate. This energy rate is a tariff which is decided by a government, or a central electricity authority. Every state it has its own tariff of इलेक्ट्रिसिटी. हर एक स्टेट में अपना अलग ही टैरिफ रेट डिसाइड करके रखा है. कहीं पे हो सकता है कि सम ऑफ द इट डिपेंड्स अपॉन योर total cost of electricity generation
So on the basis of that, every state has its own tariff plan or a tariff rate that's been decided by the central government or state government. For an example, the thermal, if I am consuming power from a thermal power plant in Madhya Pradesh and I am giving 4 rupees for per unit, might be possible that Chhattisgarh, the people from the Chhattisgarh consuming the same power consumption from the thermal power plant, they might be giving 3.5 rupees for per hour unit generation. It depends upon the fuel cost, transportation cost and all other costs. So energy rate of B is the energy rate of kilowatt hour and C is the constant amount that is charged. And what is X and Y? X is my maximum demand and Y is my energy consumption. See, this general form is independent of demand or total energy because a consumer that remains connected to the line incurs expenses even if or she does not use energy. See this here when you will see that C, I have written here it for C. C is a constant amount of charge. It is independent of your demand or independent of your energy consumption. But if either I am not using or consuming any electricity for a month, then also I need to pay some amount of money to the electricity authority, because anyhow directly or indirectly I or my household or my domestic appliances incurs or a heavy load to the connection. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मंथ के पूरे 30 दिन अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं जला रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे कुछ बिल पे करना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को। ये इसलिए पे करना पड़ता है कि ज़रूरी नहीं है कि मैं जब कंज्यूम करूँ तो ही मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट के लिए मैं एलिजिबल हूँ। अगर मैं कंज्यूम नहीं भी कर रहा हूँ तो भी मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं उनके इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के खर्चे को बढ़ा रहा हूँ। बिकॉज व्हेन आई टुक द मीटर कनेक्शन, दे गेव में द लाइन कनेक्शन, उन्होंने मीटर रखा, उन्होंने लाइन दिया, मेरे घर के सामने तक पोल लगाया है जिसके थ्रू मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, दे डन द वायरिंग एंड एवरीथिंग। सो ये ओवरऑल एक एक्सपेंसेस है जो कि मैं एनर्जी कंज्यूम करूँ या ना करूँ, एनर्जी खपत करूँ या ना करूँ, इलेक्ट्रिसिटी जलाऊँ या ना जलाऊँ, उसके बाद भी मुझे कुछ ना कुछ पोर्शन इलेक्ट्रिसिटी बिल के द्वारा मुझे पे करना पड़ता है। ओके, सो फर्स्ट आई विल डिस्कस द फ्लैट डिमांड रेट। सी, फ्लैट डिमांड रेट इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन Z इक्वल्स टू AX, है ना, AX, वेयर A इज रेट ऑफ maximum demand and X is maximum demand in kilowatt. See here, X is maximum demand in kilowatt and A is rate of per kilowatt demand. So A is rate of per kilowatt of maximum demand and X is maximum demand in kilowatt. So here you can see that this type of rate डिपेंड्स ओनली ऑन माई मैक्सिमम डिमांड। ये मेरे सिर्फ मैक्सिमम डिमांड पे ही डिपेंड है, इट डज नॉट डिपेंडिंग, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ माई एनर्जी कंजम्पशन। इसमें देखिए आगे का जो एनर्जी कंजम्पशन वाला पोर्शन है दैट इज़ BY, इस पर इंक्लूडेड नहीं है। सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन आई कैन कंक्लूड दैट फ्लैट डिमांड रेट इज डिपेंड्स ओनली ऑन माई मैक्सिमम डिमांड, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ माई एनर्जी कंजम्पशन। मेरे मैक्सिमम डिमांड पे ही ये निर्भर कर रहा है, मेरे एनर्जी कंजप्शन पे ये डिपेंड नहीं करता है। ओके, सो सेकेंड पॉइंट आई हैव रिटन इज इट इज़ बेस्ड ऑन द कस्टमर इंस्टॉलेशन ऑफ एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस विच इज जनरली डिनोटेड बाई सो मेनी किलोवाट पर मंथ और पर ईयर। इट इज़, सी हियर, अगर मेरे घर पे बहुत सारे अप्लाइंसेस लगे हुए हैं, अगर मैं अप्लाइंसेस लगे हुए हैं और उसका मैक्सिमम डिमांड मेरे पास है, मान लीजिए मेरे पास 100,000 वाट का 2 मोटर लगा हुआ है, 1000 वाट का एक हीटर लगा हुआ है, एक मोटर लगा हुआ है, तो मेरे मैक्सिमम डिमांड कितना हो गया मेरा 2000 वाट, लेकिन मैं उसको कंज्यूम ही नहीं कर रहा हूँ, तो उस कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे ये पे करना पड़ रहा है। तो इट इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस इन फ्लैट डिमांड रेट, है ना।
इट यूज इज़ वेरी कॉमन टू सप्लाई टू इरीगेशन ट्यूबवेल्स। ये वहाँ पे फ़ायदेमंद होता है जहाँ पे फिक्स्ड होता है, जहाँ पे हमारा आवर्स फिक्स्ड है कि इतने आवर्स तक आपका, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी एग्रीकल्चरल एरिया में जाएंगे जो कि गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित सभी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा, तो वहाँ पे ये डायरेक्शन रहता है उन्हें कि ट्यूबवेल आपका दिन के 4 घंटे चलना चाहिए। सो द चार्ज इज़ मेड अकॉर्डिंग टू द हॉर्स पावर ऑफ द मोटर इंस्टॉल्ड। तो जब मुझे पता पड़ गया कि 4 घंटे तक मुझे ट्यूबवेल चलाना है, सो माई मैक्सिमम डिमांड जो कि मेरा ट्यूबवेल का लोड होगा वो मेरा डिमांड होगा, और 4 घंटे तक चलाना है वो मेरा टाइम पीरियड हो गया, तो मैं उस हिसाब से बिल की चार्ज कर सकता हूँ। इसमें एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये था कि इन दिस फॉर्म ऑफ टैरिफ द यूनिट एनर्जी कॉस्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली विद एन इंक्रीज्ड एनर्जी यूजेज सिंस द टोटल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। सी एक बार मेरे पास मैक्सिमम डिमांड मैक्सिमम डिमांड मेरा निर्धारित हो गया, मेरा मैक्सिमम डिमांड 2000 वाट का है, और उस मैक्सिमम डिमांड के बेसिस पे ही मैं बिल पे कर रहा हूँ। और मान लो मैं 2000 वाट पूरे दिन चला रहा हूँ, पूरे महीने चला रहा हूँ, उसके बाद भी जो मेरा Z है वो तो फिक्स्ड हो गया, क्योंकि Z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माई मैक्सिमम डिमांड इनटू उस मैक्सिमम डिमांड का जो रेट होगा। मान लीजिए मेरा मैक्सिमम डिमांड 2000 वाट है ना, और उस 2000 वाट का पर 2000 वाट है और पर वाट का 2 रुपये चार्ज है, तो मेरा Z एक बार फिक्स्ड हो गया कि मुझे महीने का 4000 रुपीज़ देना है ना। उस कितना कंज्यूम करूँ या ना करूँ उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इट इज़ वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेजेस। अगर मैं मान लो ये 2000 वाट मैं पूरा 30 के 30 दिन चलाऊँ और 24 आवर्स चलाऊँ, तो मेरे लिए तो फ़ायदा है। एज ए कंज्यूमर आई हैव अ एडवांटेज, बट एज अ एजेंसी हु इज सप्लाइंग द इलेक्ट्रिसिटी ही हैज़ सेवरल डिसएडवांटेजेस बिकॉज दे आर गोइंग टू सफ़र इन देयर प्रॉफिट, क्योंकि वो उतना बिल रिकवर नहीं कर पा रहे हैं जितना कि उनका खपत हो रहा है। Second one is a straight line meter. See, it is expressed Z equals to by, where Z is my total bill, B is my energy rate of kilowatt hour, and my Y is energy consumed in kilowatt hour. See, earlier flat demand rate was totally dependent on my maximum demand. It was independent of my consumption. Now in straight line meter, it is independent of my maximum demand, it is directly dependent upon my consumption. है ना। See here I have written the charge depend on the energy used. How much I am using it, that I had to pay it. This tariff is used for residential and commercial consumer. The variation of bill is according to the variation of energy consumed. जितना मैं यूनिट कंजप्शन करूँगा उतना मुझे बिल पे करना पड़ेगा। इसमें एक डिसएडवांटेजेस ये है, वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेजेस इज द कंज्यूमर, इफ द कंज्यूमर इज यूजिंग नो एनर्जी विल नॉट पे एनी अमाउंट ऑल थ्रू। उसने कुछ ना कुछ खर्च करवाया है इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से, उसके बाद अगर वो एनर्जी कंज्यूम नहीं कर रहा है तो उसको बिल पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक डिसएडवांटेजेस है। Third one is the block meter rate. See here in block meter rate, or I can say in see here in the first line I have written here the straight line meter rate charges the same unit for all the magnitude of energy consumption. यहाँ पे हमने वही देखा कि जितना पहले देखा हमने फर्स्ट इन द अर्लियर स्लाइड वी सीन कि मैं जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा हूँ मुझे उतना ही बिल पे करना पड़ेगा, है ना। इफ़ हियर द एनर्जी जनरेशन और कंजप्शन स्प्रेड द आइटम ऑफ फिक्स चार्ज ओवर अ ग्रेटर नंबर ऑफ यूनिट ऑफ एनर्जी एंड देयरफॉर द प्राइस ऑफ एनर्जी शुड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंजम्पशन। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब देखिए इन दिस हियर व्हाट इज हियर आल्सो इट इज़ फिक्स्ड, Z इक्वल्स टू बी वाई, ये फिक्स है। जितना मैं कंज्यूम कर रहा हूँ उतना ही मैं बिल पे कर रहा हूँ, और मैं एक्स्ट्रा प्लस सी वाला जो टर्म था, जो एक्स्ट्रा जो मैंने खर्च जो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी मेरे पर बियर कर रही है मैं वो पे नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं अपने डिमांड का पे कर रहा हूँ, ना ही मैं मेरा जो मैक्सिमम डिमांड है, मैक्सिमम डिमांड के कारण जो मेरे पास लाइन आई है उसका मैं कभी भी एट ए टाइम यूज़ कर सकता हूँ। उसके लिए मैं कोई मैं
पे नहीं कर रहा हूँ। तो ये एक मेजर डिसएडवांटेजेस था स्ट्रेट लाइन मीटर में। तो इसके लिए हमने क्या किया, उसको ओवरकम करने के लिए ब्लॉक मीटरिंग या ब्लॉक मीटर एक नया टैरिफ रेट आया, उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। इस मेथड में हम क्या किए, सेम z इक्वल्स टू बी वाई ही है, अभी भी z इक्वल्स टू बी वाई ही है, बट b1y1 प्लस b2y2 प्लस b3y3 मीन्स इट इज वेरिंग एज पर यूर टोटल एनर्जी कंजप्शन। ये कैसे वेरी कर रहा है आपके एनर्जी कंजम्पशन में। इफ माई एनर्जी कंजम्पशन इज मोर आई हैव टू पे मोर, इफ माई एनर्जी कंजप्शन इज लेस आई हैव टू पे लेस। अगर मैं मान लो फॉर एन एग्जाम्पल है ना, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं 100 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कर रहा हूँ 100 यूनिट्स का, तो 100 यूनिट तक कोई चार्जेस फिक्स्ड है मेरे पास, 100 यूनिट तक कोई चार्जेस फिक्स्ड है। मान लो मुझे पर यूनिट 4 रुपये देना है, तो मेरा 400 रुपये हुआ। अगर मैं 100 के ऊपर गया, इफ़ मेरा मंथली कंजप्शन अगर 100 के ऊपर है 150 हो गया, तो मुझे 100 का तो 100 इंटू 4 देना है, 400 रुपीज़ प्लस 50 इंटू 5 हो गया मेरा, 50 इंटू 5 हो गया 250, तो मेरा हो जाएगा 650 रुपये बिल हो जाएगा महीने का। Once again I am explaining it. This is totally depend upon. Therefore the price of energy should decrease with an increase of consumption. जैसे जैसे मेरा कंजप्शन बढ़ रहा है, वैसे वैसे मेरा प्राइस कम होना चाहिए। एज पर द ब्लॉक मीटर रेट, जैसे जैसे मेरा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़ रहा है, वैसे ही मेरा एनर्जी का प्राइस कम होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है ना, जो रेगुलर ग्राहक होते हैं उनको हम थोड़ा सा रिलैक्सेशन या प्रॉफिट देते हैं, तो सेम बेसिस पे यहाँ पे भी है। इफ़ है ना, तो इसमें मैं क्या करूँगा, जो मेरा यूनिट कंजप्शन है उसको मैं पार्शियली डिवाइड कर रहा हूँ। अगर मैं महीने का टोटल 500 यूनिट का कंजप्शन है, तो मैं 500 यूनिट का कंजप्शन है महीने का, तो फर्स्ट 100 के लिए मुझे पर्टिकुलर कुछ फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ेगा, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो B1Y1 हो जाएगा। उसके बाद जो बचा मेरा 200, 250 या 300 यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, उसके साथ मेरा और कम वाला बिल ऐड हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मेरा 300-400 रुपये हो जाएगा। ऐसे करते करते मेरा जो Z1 होगा वो टोटली मेरा कम हो जाएगा। और जो ये Y1, Y2, Y3 है, जो कि मेरा पर यूनिट कंजप्शन का चार्ज है, एनर्जी रेट है, ये डिसाइड करता है मैनेजमेंट, ये डिसाइड करता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ये डिसाइड करता है हमारा एजेंसी जो कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है। अब मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, सिंपल से एग्जांपल का। टोटल बिल इसका मान लीजिए, अगर मेरा 500 यूनिट कंजप्शन है पूरा मंथली का, तो ब्लॉक मीटर रेट में मेरा बिल कितना आएगा। अगर मेरा 500 यूनिट है ना, 500 यूनिट है, तो मान लो 500 यूनिट को मैनेजमेंट और जो सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी है वो 5 भाग में डिवाइड कर दिया कि 100 यूनिट प्लस 100 यूनिट प्लस 100 यूनिट प्लस 100 यूनिट प्लस 100 यूनिट। फर्स्ट 100 यूनिट को आपको 5 रुपये चार्ज करना है पर यूनिट की, तो पहला हो गया मेरा 500 रुपये B1Y1 प्लस B2Y2। उन्होंने कहा कि सेकेंड 100 यूनिट का आपको 4 रुपीज़ पर यूनिट चार्ज होगा, तो 500 प्लस 400 हो गया मेरा B2Y2, 400 हो गया। B3Y3 हो जाएगा मेरा, उन्होंने कहा कि थर्ड आपका जो 100 यूनिट कंजप्शन है उसके लिए आपको 300 रुपये चार्ज होगा, तो 100 इंटू 3 300। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि लास्ट के जो 2 है उसका आपको 2 रुपये पर यूनिट चार्ज होगा, तो 200 यूनिट का मेरा हो गया 200 इंटू 2 इंटू 400। तो टोटल मेरा हो जाएगा Z 500 प्लस 400 900, 900 प्लस 300 1200 प्लस 4 1600 रुपीज़ बिल हुआ, है ना, टोटल एज पर ब्लॉक मीटर रेट। अगर यही चीज़ अगर मेरा स्ट्रेट लाइन मीटर रेट के ऊपर हिसाब से होता, दैट इज Z इक्वल्स टू BY, है ना, तो B है मेरा टोटल कंजप्शन, मेरा B आ गया मेरा 500 इंटू Y हो गया मेरा 5 रुपये पर यूनिट के कंजप्शन के हिसाब से, तो 2500 रुपये मुझे बिल देना पड़ता, तो मुझे 2500 रुपये बिल देना पड़ता अगर मैं स्ट्रेट लाइन मीटर से अगर मैं उसी चीज़ को स्ट्रेट लाइन मीटर से करता 500 यूनिट के लिए, तो मुझे 2500 रुपये देना पड़ता, और ब्लॉक मीटर रेट से कर रहा हूँ तो मुझे 1600 रुपये देना पड़ रहा है। तो इसका मतलब जैसे मेरा यूनिट कंजप्शन या कंज्यूमर का जो नीड ज़्यादा खपत कर रहा है उसको थोड़ा प्रॉफिट देना, उसका
और थोड़ा सा उसको प्रॉफिट देना, उसको और थोड़ा सा एडवांटेज देना, इसलिए जैसे जैसे उसका प्राइस ऑफ एनर्जी शुड डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन कंजप्शन, जैसे उसका कंजप्शन बढ़ रहा है वैसे उसका प्राइस उसका घट रहा है, उसको कम पे करना पड़ रहा है. So it is one of the advantages. Now the third one is two-part tariff of Hopkinson demand rate. As by name, it was developed by Hopkinson in 1892. Here in this method, the total charges are based on maximum demand and energy consumed. Z equals to AX plus BY, where A is energy rate per kilowatt of maximum demand and X is my maximum demand, Y is my consumption and B is my energy of my rate of energy consumption. Z equals to AX plus BY. अब इसमें क्या है, in this method we require two meters to record the maximum demand and energy consumed. इसमें 2 मीटर लगते हैं, जिसमें से एक में अपना मैक्सिमम डिमांड मेजर होता रहता है और एक में मेरा कंजप्शन मेजर होता रहता है. सो यहाँ पे एक डिसएडवांटेज अभी भी ये रहा कि ये तो सही है, z इक्वल्स टू एक्स प्लस बी वाई, मेरा जितना मैक्सिमम डिमांड है मुझे उतना पे करना चाहिए और जितना कंज्यूम कर रहा हूँ उसका एडिशनल भी मुझे पे करना चाहिए. बट हियर ऑल्सो आई एम लैकिंग सम constant amount of fixed charge which the electricity authority is providing to me, है ना. So the third one, the last one comes the Doherty rate, the by name it was suggested by Doherty. It is expressed by z equals to ax plus by plus c. z equals to ax plus by समझ में आ गया आपको, पहले भी डिस्कस किया हूँ. This c is a some amount of fixed charge which arises due to the increase in fuel prices, rise in wages of laborers. फ्यूल के प्राइस के कारण ये चीज़ें बढ़ गई, कभी लेबर की तनख्वाह के कारण बढ़ गई, स्टाफ की तनख्वाह के कारण बढ़ गई. तो ये अमाउंट ऑफ सम अमाउंट ऑफ फिक्स्ड चार्ज इज टू बी एडेड टू द कंज्यूमर बिल, है ना. See here in Doherty rate, when the generating capacity is less than the actual demand, then the customer are discouraged to use more power up to a certain power consumption. The charge rate is fixed, say 1.5 rupees per kilowatt hour unit, and if exceeds, ये हमारे इंडिया में इंडिया में यही वाला मेथड चल रहा है. एट रिसेंट टाइम वी आर अडॉप्टिंग दिस 3-part टैरिफ और डोहर्टी रेट टैरिफ. इसमें क्या करते हैं हम, what happened, some up to a certain power consumption there is a fixed charge. अगर मान लीजिए 100 किलोवाट 100 यूनिट का मेरा अगर पावर कंजप्शन है तो मेरे लिए फिक्स्ड चार्ज है. और फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन हियर इज 1.5 रुपीज़. 100 यूनिट पावर कंज्यूम कर रहा हूँ तो 1.5 रुपीज़ मुझे देना पड़ रहा है. दैट 1.5 रुपीज़ देना पड़ रहा है. अगर जैसे ही मैं 101 यूनिट अगर मैं खपत करता हूँ, 101, मेरे को 100 यूनिट खपत किया तो मुझे उसके साथ 1.5 रुपीज़ देना पड़ रहा है एक यूनिट का. तो 100 इंटू 1.5 हो गया मेरा, वेट अ मिनट, है ना. तो 1.5 ये फिक्स्ड है, 100 यूनिट तक फिक्स्ड है. तो 100 यूनिट तक फिक्स्ड है तो और एक यूनिट का मुझे 1.5 रुपीज़ देना पड़ रहा है. तो जैसे अगर मैंने 100 यूनिट का खपत किया तो मुझे 150 रुपये देना पड़ रहा है बिल. ठीक, मुझे 150 रुपये देना पड़ा है. बट जैसे ही मैंने 100 के ऊपर अगर एक यूनिट भी खपत किया, मान लीजिए मेरा अगर 101 यूनिट हो गया तो मुझे देना पड़ेगा 2 रुपीज़ पर किलोवाट आवर जनरेशन के हिसाब से. 150 रुपये के हिसाब से नहीं देना पड़ेगा, मुझे 2 रुपये के हिसाब से देना पड़ेगा. तो 101 इंटू मैं 2 रुपीज़ कर दूंगा तो मुझे बिल जो मेरा हो जाएगा सिर्फ डायरेक्टली 202 रुपये हो जाएगा. सो जब मैं 100 यूनिट का पावर कंज्यूम किया था तो मुझे 1.5 रुपीज़ पर किलोवाट के हिसाब से देना पड़ा था. तो मुझे 150 रुपये देना पड़ा था, है ना. और जैसे ही मैंने 101 यूनिट खपत किया, जस्ट 1 यूनिट एक्स्ट्रा खपत किया, तो मुझे 2 रुपये पर किलोवाट आवर्स के हिसाब से BY पे करना पड़ रहा है. तो ये हो जाएगा मेरा 202 रुपये. मतलब एक यूनिट कंजप्शन का मुझे कितना रुपए देना पड़ गया, 52 रुपये देना पड़ गया. तो इट इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज. बट नाउ इट इज दिस डोहर्टी टैरिफ रेट इज बीइंग फॉलोड इन इंडिया. हर एक किलोवाट हर एक पावर कंजप्शन पे कुछ फिक्स्ड चार्जेस है. अगर आप उसके एक्सीड करते हैं तो आपको हायर लिएबिलिटीज़ का पे करना पड़ रहा है. सी हियर सम ग्राफ प्लॉटेड हाउ फ्लैट डिमांड रेट. यहाँ पे एक्स एक्सिस में आप देखिए एनर्जी कंज्यूम्ड है
और वाई एक्सिस में मेरा टोटल कॉस्ट है। एज पर द फ्लैट डिमांड रेट में क्या था मेरा, z इक्वल्स टू ए एक्स। देखिए फ्लैट डिमांड रेट में था z इक्वल्स टू ए एक्स, है ना, z इक्वल्स टू ए एक्स। तो ये कांस्टेंट कांस्टेंट है x के साथ, x जितना मेरा वेरी करेगा, मैक्सिमम डिमांड मेरा वेरी जैसा करेगा वैसे ही मेरा कॉस्ट वेरी करेगा। दूसरा था मेरा स्ट्रेट लाइन मीटर z इक्वल्स टू बी वाई, जैसे ही मेरा y वेरी करेगा वैसे ही मेरा कॉस्ट वेरी करेगा, y बढ़ते जाएगा, एनर्जी कंजप्शन मेरा कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा। y अगर मान लीजिए एनर्जी कंजप्शन मेरा यहाँ तक था तो मेरा z कॉस्ट यहाँ तक पे करना पड़ा, एनर्जी कंजप्शन मेरा यहाँ तक हुआ तो मुझे कॉस्ट इतना ये करना। ब्लॉक मीटर रेट में मेरा क्या था, B1 Y1 B2 Y2 B3 Y3, है ना, Y1 ये था तो Z1 मुझे इतना पे करना पड़ा, Y2 मेरा इतना था तो Z2 मुझे ये पे करना पड़ा, Y3 मेरा बढ़ा तो Z3 मुझे बढ़ा। यहाँ पे देखिए जब A1 अब ये ब्लॉक मीटर रेट में फर्स्ट कंजम्पशन में मेरा स्टीप कर्व था, यहाँ पे सडनली मेरे पास इंक्रीज था कॉस्ट में, उसके बाद थोड़ा सा मुझे प्रॉफिट या थोड़ा सा मुझे एडवांटेज दिया गया, उतने ही पावर कंजम्पशन का मुझे इतना तो सडन इंक्रीज नहीं हुआ कॉस्ट में लेकिन कम हुआ। उसके बाद देखिए और कम मेरे पास इंक्रीज हुआ। तो जैसे जैसे मेरा पावर कंजम्पशन बढ़ रहा है वैसे मेरा चार्जेस डिक्रीज हो रहा है, वैसे मेरा पे चार्जेस डिक्रीज हो रहा है। In Hopkinson rate there was z equals to ax plus by, z equals to ax plus by। मैक्सिमम डिमांड वाला कॉस्ट मेरा फिक्स्ड है, z मेरा जैसे जैसे मेरा y बढ़ रहा है x के रेस्पेक्ट में वैसे वैसे मेरा टोटल कॉस्ट बढ़ रहा है। लास्ट वन वॉज डोहर्टी रेट इज सिमिलर टू द हॉपकिंसन रेट, बट हियर one term is added, that is c is at the fixed amount which I have to pay, which arises due to the increase in fuel prices or taxes or wages or salary of a person, है ना, वो मुझे फिक्स्ड अमाउंट कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ रहा है। So these are the types of tariff and the expression how they are being expressed and how we calculate our electricity bill on the basis of this tariff and how this tariff was implemented and how we are calculating the cost of electricity generation. So here today we will end it here, and the next lecture we will see the comparison between the thermal and hydroelectric power plant and their economics, and that will be our last lecture. So thank you everyone, stay happy and stay safe and stay positive.